Yes, sir. So we are going to see the combination of errors or propagation of errors. For example, density depends upon the mass and volume. If there is an error in the measurement of mass and volume both, so there will be the uh, both will affect the error in density measurement. So let us see whether how does it affect uh, whether we have this relation like a division or product or sum or difference. So what is the formula for deriving for getting the error in combination? So for example, suppose first we'll discuss कि सम एंड डिफरेंस मेथड में देखते हैं किस तरह से एरर विल प्रोपेगेट. तो फॉर एग्जांपल सपोज वी आर एडिंग टू क्वांटिटीज. सपोज रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. फर्स्ट रेजिस्टेंस में सीरीज रेजिस्टेंस में R1 में कुछ एरर हो गई मेजरमेंट में, R2 में सम एरर इज देयर. तो हाउ द series resistance will be affected. All right. And or suppose we have the temperature maximum and minimum temperature of the day with some error. तो डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर का, है ना, T2 माइनस T1 सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो इन सच केसेस हाउ द errors will propagate into the final quantity. So let's see. Suppose we have the two physical quantities A and B, and they are measured. Their measured value is these, where delta A and delta B are the absolute errors. उनमें errors आ गई plus or minus. Are you are measuring less or more? Measuring more means plus, measuring less means minus. So these are the measurements with errors. Now, then sum with error is equal to Z plus delta Z. जो sum होगा ये आएगा. तो Z क्या होगा? A plus B ऐड हो गया, और जो एरर है दे विल आल्सो बी एडेड अप. ठीक है, उनको सेपरेट ऐड कर लो एरर्स को, और इनको सेपरेट ऐड कर लो, दोनों को ज्वाइन करके लिख दो. तो दिस विल बी द आंसर. इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दो. तो वॉट एवर द वैल्यू कम्स, it will be the final answer. Similarly, okay, let us see the example of this. Whatever I gave you, example देखते. Suppose for example क्वेश्चन ये है, suppose रेजिस्टेंस R1 जो मैंने एग्जांपल दिया, रेजिस्टेंस R1 जो है 100 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, and resistance R2 is 200 ohm plus minus 0.2 ohm. Find net resistance in series with error. तो इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इसको. RS will be, इनको ऐड कर लेंगे, अलग अलग ऐड कर लिया हमने. मतलब हमें Z चाहिए. Z will be, ये A हो जाएगा, ये डेल्टा A होगा, दिस विल बी B, दिस विल बी डेल्टा B. तो Z will be A plus B. इनको सेपरेट ऐड कर लिया, 100 प्लस 200. सीरीज में ऐड होता है कि क्या होता है? सीरीज रेजिस्टेंस, डू यू रिमेम्बर द फार्मूला? दे विल बी सिंपली एडेड अप. पैरेलल का क्या फार्मूला होता है? आर यू देयर? Yes, sir. Sir, 1 by में होता है. हाँ, 1 by RP है ना. हियर दे विल बी एडेड अप. तो दिस विल बी 300 ohms. और डेल्टा Z क्या होगा? इनकी एरर सेपरेट ऐड कर लो, 0.1 0.2, दैट इज 0.3 हो गया. तो एरर विद, मतलब विद एरर, तो इसको ऐसे लिखेंगे पूरा. Therefore Z plus minus delta Z will be 300 plus minus, because we don't know, यहाँ पे प्लस माइनस दिया है ना, तो वी डोंट नो कि क्या है वो, इसलिए एरर्स ऐड हो जाती है हमेशा. माइनस है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है 0.3 ओम. दिस इज द आंसर. इसमें इट इज वेरी डायरेक्ट, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर. एरर्स को सेपरेट ऐड कर लो और एक्चुअल वैल्यूज को सेपरेट ऐड करके लिख दो. प्लस माइनस, बिकॉज here also plus minus we don't know, दोनों में प्लस है या दोनों में माइनस है, या एक में प्लस है या एक में. मैक्सिमम पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबल एरर. मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्स एरर. इससे बाहर नहीं होगा. कितना भी रीडिंग ले लो रेजिस्टेंस की,
It will not be outside of this. Now, clear, this is okay. There should not be any problem in addition. Difference में देखते क्या आता है. Just note down. Just note down. डिफरेंस में देखिए, फॉर डिफरेंस लेट्स सी, डिफरेंस में क्या आएगा. देखो, डिफरेंस के लिए भी सेम फार्मूला होगा. देखते कैसे सेम आता है. डिफरेंस के लिए वी विल हैव z plus minus delta z, where z will be a minus b. B minus a or a minus b, whichever is bigger, you write first. And delta z क्या होगा? That will be delta a plus delta b, plus or minus. यहाँ पे what will be there? Whether here minus or plus, बोलो. It will be plus again. It will be plus again. कैसे? How can we say plus again? Let's see. इसका डेरिवेशन ही देख लेते हैं. देखो, तो हमने क्या लिखा? इन बोथ केसेस एरर्स आर एडेड अप. एरर्स आर एडेड. एक्चुअल वैल्यू तो प्लस माइनस हुई. यहाँ पे a माइनस बी है. कैन यू सी हियर a प्लस बी? बट दिस यू सी in both the cases errors are added up. Why? Because let us see why here also we are adding. देखो, you see here, ये चलो प्लस वाला तो डायरेक्ट है, माइनस वाला करते हैं. देखो, let me do it again. देखो, देखो ये यहाँ पे I am deriving it. डिफरेंस विद एरर, माइनस करना एरर के साथ. तो z प्लस माइनस डेल्टा z दोनों को माइनस कर दो. ये फर्स्ट मेजरमेंट था, ये सेकंड. तो लेट्स सी. अच्छा, z को क्या लिख सकते हैं हम? z विल बी a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज. यहाँ पे देखो ये a आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ पे माइनस b, और ये प्लस माइनस है, आगे माइनस है. इट विल रिमेन प्लस माइनस, और माइनस प्लस कर सकते हैं मैक्सिमम. ठीक है, माइनस विल मेक इट माइनस. ये माइनस इसको माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और माइनस को प्लस कर देगा, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा. गेटिंग और नॉट? तो हियर इफ यू सी, देखो यहाँ पे कोई ऐसा है, समथिंग इज रिटन लाइक दिस, तो क्या होगा? माइनस मल्टीप्लाइड विद प्लस विल बी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा. वन इज माइनस, वन इज प्लस, तो हमने प्लस ऊपर ही लिखा उसको. गेटिंग और नॉट? क्वांटिटी के सामने प्लस माइनस है, तो आई एम राइटिंग प्लस माइनस. नाउ a is getting cancelled from here, b is also getting cancelled. Plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b, or we can write delta z is equal to delta a plus delta b. So again maximum error, ये maximum error, maximum value of error. ठीक है, तो माइनस में भी ऐड हो गया. देखो व्हाट वी हैड डन इन बोथ केसेस, error is added. तो if they ask you why, you can prove it like this. प्लस का अपने आप करो, माइनस का है shown you can do for the प्लस. प्लस के लिए भी आ जाएगा. प्लस का तो इजी है, ये प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से सेम आ जाएगा प्लस के लिए. बट माइनस के लिए इट इज नॉन इंट्यूटिव, देयरफॉर आई एम शोइंग यू अगेन. ठीक है, ओके, आर यू देयर? Yes, sir. What we have learned here, errors will be added up in addition and subtraction. All right, so that is the important point. Subtraction का जो है that is important. यहाँ पे देखो this one,
You don't do the minus. माइनस नहीं करना है, इसके न्यूमेरिकल करके देखते हैं. We'll do the numerical to have more confidence in this. तो अगर डेरिवेशन क्लास में कराया जाता है जैसे अभी हमने किया तो यू कैन डू इट. इसको डिराइव करके दिखा सकते हैं. माइनस का भी हमने किया ही. That's how it is given in your textbook. Derivation, if they ask you to derive, then derive it. Otherwise, we are doing the questions. Derivations, if it taught to you in the class, you can follow the way I told you. So let's do this question. Temperature difference का करके देखते हैं. Do we have the question here? यहाँ पे देखो. See. Have you noted or you do want to see again it? Have you noted it? Yes, sir. देखो डेरिवेशन देखो मैंने कैसे करके दिखाया. देखो डिफरेंस में भी एरर्स ऐड हो गई. तो यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस. तो मैक्सिमम एरर इज ऑलवेज सिलेक्टेड इन एनी मेजरमेंट. मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन प्रोपेगेशन विल बी टेकन. क्योंकि देखो वी डोंट नो. सपोज एक में प्लस एरर हो गई और एक में माइनस हो गई. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस ले लो, सपोज दोनों में प्लस हो गई है ना, तो ये दोनों में इक्वल हो गई. सपोज एक में 0.1 है, दूसरे में भी 0.1 है, दोनों में प्लस. दे विल गेट कैंसिल. 0 एरर आ जाएगी अपनी. whereas we have the error in both. Therefore maximum possible error का हमें लिखना है यहाँ पर, because we do not know क्या एरर हुई है. दोनों में प्लस हुई है, दोनों में माइनस हुई, या एक में प्लस एक में माइनस. तो we will focus on the maximum possible error. मैक्सिमम एरर पर फोकस रहेगा अपना इन एनी मेजरमेंट इन प्रोपेगेशन. तो माइनस नहीं होती. एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड अप बिकॉज वी डू नॉट नो प्लस है कि माइनस है. देखो जैसे ये क्वेश्चन है. देखो नाउ इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ डेज आर गिवन बाय दिस मच, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मिनिमम. तो फाइंड आउट टेम्परेचर विद एरर. तो टेम्परेचर विद एरर निकालेंगे. तो ये ए है, ये डेल्टा ए, दिस इज बी, दिस इज डेल्टा बी. तो ए माइनस बी, पहले तो z निकालो, ए माइनस बी. तो दैट इज 40 minus 25, that is 15 degrees Celsius. Now error, एक डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. फर्स्ट में एरर 0.5 है और इसमें भी 0.5 ही है ना. तो देखो तो 0.8 विल बिकम 1 है ना, एड अप हो गई 1 डिग्री. तो देयरफॉर टेम्परेचर विद एरर, टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर (15 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री है ना. अगर तुम यहाँ पे माइनस ले लोगे, देखो सपोज है ना, तो ये तो 0 आ जाएगा. यहाँ पे तुम लोगोगे 0, नो एरर. बट वी आर नॉट इन पोजिशन. इसमें भी एक्स्ट्रा मेजर में, इसमें भी कुछ है, इसमें भी कुछ है. तो दोनों में मिला के मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1 डिग्री हो सकती है. इन एनी केस इसमें से बाहर नहीं होगा, इसके बाहर नहीं आंसर होगा. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो एरर्स आर एडेड, यहाँ पे लिख दो फिर से. ठीक है, ऊपर लिखा हुआ एरर्स आर एडेड इन डिफरेंस आल्सो. तो इसमें दिस टाइप ऑफ सिचुएशन में यू आर लाइकली टू डू द मिस्टेक. एरर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे. एरर को माइनस नहीं करना है. ऑलवेज रिमेंबर एरर्स विल बी एडेड अप बिकॉज वी डोंट नो प्लस है कि माइनस है क्या है. डन? Yes, sir. All right. Now what about product and division? देखो प्रोडक्ट विद एरर. ओके, यहाँ पे देखो एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन. पहले प्रोडक्ट का देख लेते हैं. सपोज ओके, सेम मेजरमेंट ए प्लस माइनस डेल्टा ए, वही वैल्यूज के साथ चल रहे हैं. दो मेजरमेंट्स हैं तो प्रोडक्ट कितना होगा, दैट विल बी ए इनटू बी.
and measured value of A and B. Okay. A and B की measured value क्या है? A plus minus delta A, B plus minus delta B. So then product with error will be Z plus minus delta Z. तो ये तो Z तो आएगी अपने पास, A into B डायरेक्ट करना है. What about delta Z? So where delta Z can be calculated with the following relation. ये रिलेशन से is equal to delta A by A. ये रिलेशन प्रोडक्ट में ये एरर निकालने के लिए ये रिलेशन आता है. इसका प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ अभी आप कैसे आता है. इसका प्रूफ देख लो. और डिवीजन में z क्या होगा? a माइनस बी, a डिवाइड बाई बी होगा. एंड डिवीजन विद एरर ऐसे लिखेंगे. z तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट. डेल्टा z का फिर से सेम फार्मूला. दोनों में सेम फार्मूला आता है. देखो, कैन यू सी? दोनों में सेम फार्मूला है. Here both are the same formula. यहां से एक और फार्मूला मिल गया. देखो, एक तो ये हो ही गया है. ये क्या होता है? रिलेटिव एरर भी होती है. हमने पढ़ा था डेल्टा z by z is called what is called relative error. Do you remember yesterday we have seen Yes, sir. mean absolute error divided by mean value is called relative. So this is one more point we are getting here. Relative error is sum of the relative errors in two measurement. इनके जो टू मेजरमेंट है उनके सम के बराबर जो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर आएगा. मतलब इंडिविजुअल मेजरमेंट के जो रिलेटिव एरर होंगे सिंपली ऐड कर दो वेदर इट इज प्रोडक्ट और डिवीजन. तो व्हाट वी गेट इज द रिलेटिव एरर इन द फाइनल क्वांटिटी. व्हाट आई हैव रिटन हियर, रिलेटिव एरर इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स इन टू मेजरमेंट्स. और परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है इनटू 100 कर दो. तो दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग. व्हाट वी आर गेटिंग इज यूजफुल इंफॉर्मेशन. नोट में लिख लो इसको. So this is that very important information we have got. Now question is this, how to get this result? Anybody know ये कैसे आता है? Are you there? Just confirm your Yes, sir. availability. Yes, sir. तो anybody can think कैसे मिलेगा ये? Shall I show you one derivation? दूसरा अपने आप करेंगे. Okay, sir. देखते चलो इसको पहले देख लेते हैं. Then numericals we are doing. Which one? This one? First one? Let's do first. तो देखो प्रोडक्ट वाला देखते हैं. तो प्रोडक्ट विद एरर. तो ये प्रोडक्ट विद एरर है. तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. है ना, एरर के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो एरर के साथ मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, a इंटू बी हो जाएगा. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, फिर इसको साथ इसके साथ. है ना. तो राइट साइड देख लेते पहले. a इंटू बी आ गया और a इंटू डेल्टा बी आ गया. अच्छा, इसको कर रहे हैं क्या पहले? a इंटू बी एंड b इंटू डेल्टा ए एंड डेल्टा बी का कर लो अभी दोनों के साथ. a इंटू डेल्टा बी और डेल्टा ए इंटू, दोनों ब्रैकेट ओपन कर लिया. लास्ट स्टेप में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. ठीक है, इसका इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर बी वाले का किया इसका. नाउ लेफ्ट साइड में z कितना होगा? z विल बी a इंटू बी. प्रोडक्ट के साथ a इंटू बी आएगा. z की वैल्यू a इंटू बी पुट कर दी. यहाँ भी एक ब्रैकेट ओपन करने से a इंटू बी आ गया, ये कैंसिल हो गया. नाउ यहाँ पे डेल्टा z मिल गया. यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. यहाँ पे b डेल्टा a है, ये a डेल्टा b. व्हाट अबाउट दिस टर्म? ये टर्म का क्या करना है? देखो, ये टर्म जो है, देखो एरर्स जो है बहुत छोटी होती है. सपोज एरर एक में 0.1 मिली,
दूसरे में 0.2 मिली, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 0.0002 आ गया। प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल हो गया कि नहीं? ये डेल्टा ए मिला, सपोज दिस इज डेल्टा बी, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट इज very small, therefore neglect, because product of error will be further very small. All right, तो ये टर्म छोड़ दो, तो ये मिल गया। अभी इसमें दोनों तरफ z से डिवाइड कर दो, बोथ साइड, here also, here also, here also. This is nothing but a into b, so b will get cancelled. Here also a into b, a will get cancelled. Yeah, okay, यहाँ पे लिखा देखो, b goes, a goes, क्या मिल गया हमें? प्रूव हो गया कि नहीं? देखो, so if it is derived in the class, derivation is asked, then you can derive it, otherwise just we'll focus on the numericals. Got it? कैसे किया? error with product with error, तो दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया एंड ब्रैकेट ओपन किया, सिंप्लीफाई कर लिया, z की वैल्यू a into b पुट कर दी, कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, कुछ नेग्लेक्ट कर दिए, ये बाद में z से डिवाइड कर दिया और उसकी वैल्यू a into b पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, तो वी गेट दिस। ऐसी डिवीजन का भी आएगा। डिवीजन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, a बाई बी हो जाएगा यहाँ पे, और ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब हम ऊपर ले जाते तो माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म ऊपर जाके, और बाइनोमियल थ्योरम से, ओके, उसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? बाइनोमियल थ्योरम हुई है कि मैथ्स में? नहीं सर। ओके, तो फिर तुमको डेरिवेशन, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ उसका भी। देखो डिवीजन में कैसे आएगा, जस्ट अंडरस्टैंड। बाकी अपने आप कर लेना, लेट मी टेल यू स्लाइटली। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे ही रहेगा, z प्लस माइनस, यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई p प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ पर a प्लस माइनस डेल्टा a तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अभी इसमें से ये जो पावर होती है ना बाइनोमियल थ्योरम से, इसमें कॉमन ले सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, इसमें से a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, यहाँ से b कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगती है, ये पावर आती नहीं, पावर यहाँ पे आ जाती है आगे, तो बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं उसको। फिर से वही रहने वाला है, देन यू सॉल्व इट, सेम रिजल्ट विल कम। ओके, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्रॉस चेक इसको जस्ट I'll tell you tomorrow whether how they have done it in your textbook. Binomial theorem, if it is not done, then difficult to explain you. After that, I will explain you. Okay. So in both cases, it is same, delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes sir. And division. Okay, so we'll solve the numerical now. Let's see. Can we try this question? This one, नीचे से जो लिखा है वो दिख रहा है? If the length and width of the field is this much and this, find the area with error. अभी डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर देना,
ऑलरेडी वी हैड व्हाट यू डू, तुम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा 0.5 इंटू 50 प्लस 0.1 एंड फिर कुछ ना कुछ आंसर निकाल देते। तो वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर मेथड। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, z, दैट इज a इंटू बी। तो ये a हो जाएगा, ये डेल्टा a रहेगा, दिस इज b, दिस इज डेल्टा b। तो a इंटू बी कितना है, 100 इंटू 50, तो ये आपका हो गया 5000 मीटर स्क्वायर। और डेल्टा z कैसे निकालें बोलो, हमें फाइनली क्या चाहिए, जेड प्लस माइनस डेल्टा z, ये चाहिए एरिया विद एरर, है ना। एरिया मीन्स दैट, एरर मीन्स डेल्टा z। तो डेल्टा z निकालना पड़ेगा, z तो आ जाता है, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। व्हाट अबाउट डेल्टा z, कैसे निकालें बोलो, हाउ टू गेट इट। Z by Z equals delta A by हाँ, Z. yes, just now we have seen the formula, now we have to use the formula direct। हमें फिर से डेराइव नहीं करना, डेरिवेशन हमने देख लिया ऊपर, just now I have shown you how do we get this, yes or no। तो now after getting the derivation done, you have to use the formula again and again, you cannot derive it। तो अभी ये फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो यू गेटिंग द डेल्टा z, चलो ठीक है, फार्मूला लिख दिया हमने, यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल्टा z निकालना है। z हमने निकाला कितना है, 5000, पुट इट हियर। डेल्टा a कौन सा होता है इसमें, जो पहली क्वांटिटी है उसका जो प्लस माइनस होता है, डेल्टा 0.5 है, डिवाइड बाई a इज 100। कैन यू सी, यहाँ पे दिख रहा है तुम लोग को, ये जस्ट सी, फर्स्ट वन इज a, सेकंड वन इज डेल्टा a। तो एक प्लस डेल्टा b is what, tell me what is delta b, read the question and tell me what is delta b। 0.1 here, और this will be b, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी दिया था 0.1 डिवाइड बाई 50। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, डेल्टा z को निकालना है, तो जस्ट सेंड दिस 5000 टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, डेल्टा z इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5000, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले इसको ऐड करके बाद में 5000 को उधर शिफ्ट करो, इट्स अप टू यू। 5000 डिवाइड बाई 50, ये 2 जीरो चले गए, ये 0 इससे चला गया, तो ये आ गया 25, और इधर कितना आ रहा है, 1 0 गया, और ये 500 100 बचा इधर, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज 10, दिस इज कमिंग 35 मीटर स्क्वायर, है ना। Therefore, area with error will be 5000 plus minus 35 meter square. So errors are bound to happen. So our answer will be that with error only. Maybe देखो ये कैलकुलेशन के लिए हम थोड़ा सा सिंपल वैल्यू दे रहे हैं, मे बी 0.01, यहाँ पे 0.05 हो सकता है, यहाँ पे 0.001 हो सकता है। तो मे बी लेस एरर्स इन एक्चुअल मेजरमेंट्स, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, एग्जीगरेट किया है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रखने के लिए। एरर्स में बी लेस देन दिस, कम होनी चाहिए एरर्स, है ना। इफ यू आर कमिटिंग सो मच ऑफ बिग एरर, तो इट इज नॉट गुड मेजरमेंट। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको, बोलिए। सर, हाँ बोलिए। सर ये 5000 प्लस माइनस 35 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? देखो सपोज मतलब तुम, हाँ एक्चुअल मीनिंग ये है कि इतना हो सकता है जो तुमने, जो यू कैन नॉट से कि पूरा एक्यूरेट 5000 होगा, यू आर डूइंग मेजरमेंट, कुछ बड़ी फील्ड है, ग्राउंड है ना, तो उसका तुमने मेजरमेंट किया, तो मेजरमेंट करते 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 ये सब 0.5 कम ज्यादा मेजरमेंट कर लिया, है ना। देयर मे बी वेरियस कॉजेस फॉर दैट एरर, वी डोंट नो, कहीं पे मतलब ह्यूमन एरर हो गई, या कुछ मेजरिंग टेप में ही कुछ गड़बड़ है ना। तो इतना 100 सर मीटर को तो
यू में मेजर, हाँ बोलो। सर तो मतलब इसकी मतलब 4965 भी आ सकती है और या 5035 उसके बीच में भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि इतनी में इतनी, देखो यहाँ इसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, देखो माइनस कर लो, 5000 -35 और 5000 +35, तो ये कितना आ रहा है 4965 है ना, 2 से लेकर 5035 मीटर स्क्वायर, तो इतनी पॉसिबिलिटी है, और इट मे बी फ्रॉम हियर टू हियर एनीथिंग इज, आंसर इज पॉसिबल, इवन इट कैन बी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर नहीं होगा, इट विल नॉट बी आउटसाइड ऑफ एनीबडी डज द मेजरमेंट, इसके बाहर नहीं होगा, मैक्सिमम है ये, दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल, ये जो है मैक्सिमम है, ओके सर। क्योंकि हमने ऐड किया हुआ, देखो यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है ना, तो मेजरमेंट कैन नॉट गो आउटसाइड ऑफ दिस। ऑलराइट, यस सर। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, होमवर्क में ये forces, force applied, suppose force you are applying, measuring the force with the pressure gauge में 0.1 न्यूटन की एरर हो सकती है, एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द एरिया आल्सो 10 मीटर स्क्वायर है, उसमें भी प्लस माइनस 0.1 मीटर स्क्वायर का एरर हो सकता है, फाइंड द प्रेशर ड्यू टू द फोर्स ऑन द सरफेस विद एरर, फार्मूला फॉर प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया, तो डिवीजन वाला फार्मूला है, तो z तो डायरेक्ट आ जाएगा, ये क्या है आपका, फिर से वही, दिस इज a, दिस इज डेल्टा a, दिस इज b, दिस इज डेल्टा b, तो z कितना होगा बोलो, यहाँ पर प्रेशर का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, a बाई b, a इज फोर्स, b इज एरिया, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो 10 यूनिट क्या होती है फोर्स की, प्रेशर की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो ये आ गई, और डेल्टा z भी निकालना, अभी हमें चाहिए क्या, z प्लस माइनस डेल्टा z चाहिए, तो डेल्टा z तो वही फार्मूला, एक ही फार्मूला है जो ऊपर यूज किया, तो डेल्टा z सेम फार्मूला से निकाल लो, वैल्यूज डिफरेंट हो गई, दिस द फार्मूला फॉर डेल्टा z, वैल्यूज आर डिफरेंट हियर, तो डेल्टा z विल बी डिफरेंट, उसको कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके लिख दो, तो सेम रिपीटेशन ऑफ द स्टेप्स, नथिंग बिग डील इन दिस, तो ये होमवर्क में है, डू इट एंड सेंड इट। नो प्रॉब्लम सो फार, हाँ सर। ऑलराइट, नोट कर लो इसको, सर या सर जैसे हम एक स्केल में 1 से 2 सेंटीमीटर गिनते हैं, फिर वो अगर अगर 1.1 आया है तो उसका भी 1.1 के बीच में भी आता है, 1 और 1.1 के, तो हाँ उसमें वही तो मैं, यस उसमें यस, 0.1 का हाँ मैक्सिमम एरर 0.1 हो सकती है, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, जैसे सपोज अपना मैक्सिमम एरर, जैसे ये मीटर स्केल, ये अपना नॉर्मल नॉर्मल दैट स्केल होता है, उसमें यहाँ पे देखो 0 ऐसे छोटे छोटे डिविजन्स है ना, ये 10 है सब, ये 1 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर, तो इसमें मैक्सिमम एरर कैन बी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1 मिलीमीटर की हो सकती है, और 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डिवीजन वी कैनॉट दैट डू द, बीच में कहीं पे वो है दिख रहा है, तो maximum possible error is possible 1 mm in the
in the scale which we use in the class, है ना? 1 mm maximum possible error है किसी भी measurement में. Suppose you are measuring it with the scale, है ना? तो maximum 1 उसके अंदर ही रहती है ना? सर तो सपोजिंगली आंसर है अपना 1.1, तो फिर 1 भी हो सकता है और 1.2 भी हो सकता है, तो उन दोनों के बीच में. हाँ 1.1 आया तो 1.1 आया तो थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. नहीं 1.1 देखो वो तो सिंगल रीडिंग हो गई ना, यहाँ पे प्रोपेगेशन ऑफ एरर पढ़. हाँ तो 1 पॉइंट तुमने रीडिंग ली 1, ऐसे तुम बोलोगे ओके एक्यूरेट मेजर ऐसा 0.1 है कुछ. मैक्सिमम जो है तुम इसमें जो जो स्केल से मेजर करते हैं 0.1 ये किस में रहेगा, सेंटीमीटर में. तो यू कैन डू इट 0.9 टू 1.1 इसमें. इससे इतनी मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर मेजर करने में इससे ज्यादा नहीं एरर कर सकते हैं ना. मैक्सिमम यू कैन डू इट ईयर टू ईयर. इसके है ना 1 मीटर के आसपास कोई ऑब्जेक्ट है तो 0.9 से लेकर 1.1 सिंगल मेजरमेंट की बात हो रही. और यहाँ पे हम मल्टीपल मेजरमेंट के साथ ले रहे हैं, डिवीजन ले रहे हैं ना. ओके सर, समझ गया. सिंगल यू आर आस्किंग अबाउट सिंगल रीडिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन यहाँ पर. ठीक है. दैट इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं ना. अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे लीस्ट काउंट ऑफ स्केल इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट इतना एक्यूरेट ही कर सकता है, इससे कम हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना. ओके, दिस इज द होमवर्क. नाउ ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये वाला 2.9 नॉट नाउ. 2.9 is in homework, we'll discuss tomorrow. ये किस पे बेस होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो पॉइंट बताया था ये वाले रिलेटेड पॉइंट बताए थे, ये रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाती है, इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स ऐड होके जो फाइनल क्वांटिटी है उसकी रिलेटिव एरर के बराबर आएगी. रिलेटिव एरर इन द फाइनल मेजरमेंट इज सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ 2. तो फाइनल मेजरमेंट उसका क्या था, आर इज इक्वल टू वी बाई आई है. डिवीजन के फार्मूले में भी यही चलता है. तो वी का जो रिलेटिव एरर है, आई का एरर, दोनों ऐड होके आर का रिलेटिव एरर मिलेगा. परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन एंड वील डिस्कस टुमारो. 2.9 है ना, डिवीजन का फार्मूला है और रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर निकाला तो इंटू 100 करना पड़ेगा. तो वील डिस्कस टुमारो, ट्राई टुडे. और आई कैन डू इट नेक्स्ट टॉपिक टुमारो कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर इस ओके डू वी हैव टाइम. तो सिंपल ही है, देखो दिस इज वेरी सिंपल पॉइंट. देखो ओके, देखो सपोज वी हैव z इज इक्वल टू ए स्क्वायर. कोई रिलेशन है अपने पास, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर है. तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, a इंटू ए वी कैन राइट. प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं. ये स्क्वायर मीन्स व्हाट, प्रोडक्ट है, a इंटू ए. नाउ प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर यूजिंग द. नाउ एरर, रिलेटिव एरर की बात करें, एरर डेल्टा जेड बाई जेड. अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी इसके प्रोडक्ट फार्मूले में एरर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जेड बाई जेड. और ये फर्स्ट क्वांटिटी है डेल्टा ए बाई ए, सेकेंड क्वांटिटी भी ए ही है तो डेल्टा ए बाई ए अपॉन ए. तो दिस इज 2 ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम है, 2 डेल्टा ए बाई ए.
इसमें क्या हुई, पावर आगे आ गई, पावर कम्स इन फ्रंट। तो ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, इधर इन मेजर्ड क्वांटिटी रेस टू सम पावर, है ना। अगर कुछ पावर है उसकी तो उसमें एरर कैसे होगी, पावर कमिंग इन फ्रंट, है ना। ये देखो 2 इधर आ गई, और रिलेटिव एरर का फार्मूला, एरर रिलेटिव एरर है, ये रिलेटिव एरर इन परसेंटेज एरर, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर के लिए बहुत यूजफुल है ये रिलेशन। तो नाउ सपोज इन जनरल फार्मूला क्या बनेगा, वी हैव दिस रिलेशन, मल्टीपल क्वांटिटीज ए बी है, बी बी है, सी बी है ना। सपोज वी हैव द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या था वो, वी स्क्वायर बाई आर, डिपेंडिंग अपॉन 2 क्वांटिटीज, इसमें पावर भी है, लाइक दिस। तो व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला हियर, कैन समबडी टेल मी, डेल्टा जेड बाई जेड, अगर रिलेटिव है तो ऐसे छोड़ देंगे, परसेंटेज में है तो 100 भी आ जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, पावर आगे आ जाएगी, ऑलराइट, देन प्लस एरर्स आर एडेड, यहाँ पे कभी माइनस नहीं होगा सर, टू, हाँ इंटू 100 भी है, बाद में एक साथ कर देते आउटसाइड ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, डेल्टा बी बाई बी। व्हाट अबाउट सी, गामा है, पी सॉरी ये आर, पावर इज आर, पी क्यू आर। ना इसमें कंफ्यूजन, यू विल से सर यहाँ तो सी माइनस आर हो जाएगा, फिर आगे माइनस, नो हियर आल्सो एरर्स आर एडेड, वी डोंट नो प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस ही रहेगा, आर टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। दिस इज वेरी यूजफुल फार्मूला फॉर परसेंटेज एरर, प्रोवाइडेड, इसके साथ कंडीशन है, यू नो व्हाट कंडीशन इज देयर, एक कंडीशन है that I think it is not given in the book, but you should always remember, provided errors are less than 5% और 10% से कम, 10% से ज्यादा हो गई तो ये फार्मूला फेल हो जाता है, दिस फार्मूला विल, देयर विल बी एरर इन दिस फार्मूला, एरर में एरर आ जाएगा, वैलिड फॉर स्मॉल परसेंटेज एरर्स लेस देन 10%, जितना 10 से कम है उतना एक्यूरेट रिजल्ट। परसेंटेज एरर का फार्मूला हमने सीखा था ना, वो 100%, परसेंटेज एरर का फार्मूला मैंने शायद बताया भी था कल भी, दैट विल ऑलवेज गिव यू 100% करेक्ट रिजल्ट। कहाँ पे था फार्मूला, कल हमने डिस्कस किया था कि हाँ ये देखो, दिस फार्मूला विल ऑलवेज गिव यू 100% करेक्ट रिजल्ट, वेदर वेरी स्मॉल चेंज or very small error or large error, more than 10, less than 10. But if less than 10% errors हैं, तो this is time saver, big time saver. चाहे वो error हो, चाहे वो change हो, दोनों लिए यूज कर सकते हैं ये फार्मूला। Are you getting this point? I will give you one numerical, we'll solve, जिसमें percentage error 11% है, so I'll give you with this formula also, with that formula we'll find out whether both are coming same or less or different. तो बट दीज ऑल रिजल्ट्स जितने ऊपर लिखे थे सब लेसर परसेंटेज के लिए 100% एक्यूरेट रहेंगे, परसेंटेज एरर गोज अप, दिस एरर इन द फाइनल क्वांटिटी विल आल्सो बी will be taking place. I'll show you with the example, but you remember for time being कम परसेंटेज, 1%, 2%, 3%, 4%, like this, जितना कम होगा कि उतना एक्यूरेट आंसर्स आएंगे, otherwise answer will have error. But it is big time saver, very quickly we can get the answer if you use that formula change upon, if you use that formula change upon initially into 100, it takes lot of calculation for the small percentage, 1%, 2%, 3% के लिए काफी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं उसमें, इसमें नहीं करने पाते। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये क्वेश्चन है, find the relative error in z if z is equal to this, relative error means delta z by z. So direct is में nothing much to explain, you देखो direct you can solve example है, you can see the answer quickly.
क्या आएगा, पावर आ गई आ जानी है ना, देखो 4 आगे आ गई यहाँ पर, कैन यू सी, कैन यू सी ये 4 आ गया इधर, ये 1/3 आगे आ गया, और ये देखो ये प्लस रहेगा, देखो सी, अच्छा सी डिनोमिनेटर की क्वांटिटी भी प्लस है, सी की पावर 1 है, यहाँ पे 1 आ गया, डी की पावर 3/2 है, तो 3, नथिंग मच टू एक्सप्लेन, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, जस्ट विल वाइंड अप वन विद इन 1 मिनट, ठीक है, यू वांट टू सी दिस क्विकली, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी को भी माइनस नहीं लिखना, दैट इज व्हाट इज द हाईलाइट। So this formula helps you a lot in competitive examination, particularly I'm telling you. एरर के लिए या चेंज के लिए, या तो हम एरर के लिए पढ़ रहे हैं, बट चेंजेस के लिए हेल्पफुल फार्मूला, प्रोवाइडेड परसेंटेज एरर और परसेंटेज चेंजेस शुड बी लेस देन 10%. Okay, based on this you can try this question. देखो ये not this, this one. तो आई टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रूट को क्या लिखेंगे बोलो, नीचे रूट है, रूट की पावर क्या होती, हाफ, हाफ लिख देंगे, है ना। तो परसेंटेज एरर आर गिवन हियर, 1 सी ए में ए हैज 1%, बी हैज 3% एरर एंड सी हैज 4% एरर एंड डी हैज, तो ये ए, इसका मतलब क्या होता है, कैसे, हाउ विल राइट डेल्टा ए बाई ए into 100 is equal to 1% given. देखो एक, कैन यू सी हियर, जस्ट आई एम हाइलाइटिंग, एक ही सीक्वेंस में दिए, देखो ये, तो your answer will be in percentage, final answer will be in percentage. Very direct, with you don't have to use the pen even, 3 आगे आ जाएगा, 3 into 1, ऐसे ही बी का, सी का, डी का, निकालना क्या है, डेल्टा पी बाई पी। कैन यू डू, गिवन में ए 13%, कितना कितना, 13, हाँ मे भी 13 के आसपास आंसर सही है, मे बी राइट आंसर, 13% में भी दिख ही रहा है, देखो 3, और ये कितना है, 3 3 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9, अच्छा ये तो और ये 11% ज्यादा है 10% से, ज्यादा रहेगा, 9 and 2 10 11, से ज्यादा है ना सर ये। 11 हाँ 13 ही आ रहा है, सही तो है, 9 and 2 13% ही आ रहा है, सही, सर 3 बट 10 plus से 6, ज्यादा है ना, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा ना। नहीं गिवन है ये गिवन परसेंटेज, दे शुड बी लेस देन 10, वो तो ऐड होने के बाद आ रहा है ना, दीज ये लेस देन 10 है, देखो लेस देन 5%, इंडिविजुअल जो रीडिंग्स है, इंडिविजुअल परसेंटेज एरर शुड नॉट बी लेस, should not be more than 10%, I'm telling you. Added together, final quantity will have, can have percentage, add होने के बाद it can cross 10%, I am telling you. Add होने के बाद cross, individual देखो, this suppose if I give you this last one, अगर मैं दे दूं, if I give you, okay, last one is 20%, so this then this formula will fail. ये 3 तो ठीक है, this any quantity should not cross 10%, roughly 10%, उससे कम है ना, 10% से ऊपर तो सिग्निफिकेंट एरर्स आने दिखने लगती है हमें, डिफरेंस बिकम्स, कैलकुलेशन में डिफरेंस बढ़ जाता है, इससे करेंगे और जो चेंज वाले फॉर्मूले से करेंगे, दोनों से बढ़ जाता है फॉर्मूला, गॉट इट। ऐड Yes, sir. करने के बाद इट कैन क्रॉस 10%, फाइनल क्वांटिटी है ना, दिस कैन क्रॉस 10%, बट दीज इंडिविजुअल शुड नॉट हैव मोर देन 10% एरर्स, दैट इज बिग एरर हो जाएंगे ना, दिस फार्मूला विल फेल। टुमारो विल सी द डिफरेंस, कल हम लोग सॉल्व करेंगे 10% से ज्यादा लेके, then we'll see what is the actual answer, what is the answer coming from this. That's all from my side. If you have any difficulty, you can ask, others can, those who are the class can just quit, इसके बाद क्लास होगा तो
नोट कर लिया तो जस्ट यू कैन लीव। क्लास नहीं है और डाउट है, देन स्टे बैक, देन यू होल्ड, आई क्लियर योर डाउट इफ यू हैव।